This is another session for class 12th chemistry, and you know that in the previous session we have started one of the important topic of class 12th chemistry from the chapter solutions, that is types of solution. And here we are going to discuss types of solution on the basis of Revolta's law, whether a solution obeys Revolta's law or not. On that very basis, solutions are of two types: whether a solution obeys Revolta's law at all concentrations and at all temperatures. Whether a solution obeys Revolta's law at all concentrations and at all temperatures. That is known as that is the criteria for describing the types of solution here. Those solutions which obey Revolta's law at all concentration terms and at all temperatures, that is called ideal solution, and the solution which does not obey, that is called a non-ideal solution. Suppose, because here most probably we are explaining here that type of solution in which both solute as well as solvent is volatile. Suppose here solute is represented by B and solvent is represented by A. Then according to Revolta's law, the total pressure of such type of solution is equal to P naught A XA plus P naught B XB. If the observed value of vapor pressure of any particular solution is equal to calculated value of vapor pressure of that very solution, then at that time we can say that this type of solution obeys Revolta's law. That means in case of ideal solution, P is equal to P naught A XA plus P naught B XB. Also P is equal to P naught A XA and P is equal to P naught B XB. ये भी आपको याद रखना है किस केस में, शाबाश, आइडियल सॉल्यूशन में. इसके बाद मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शंस, व्हेन वी आर सीइंग द इंटरैक्शंस of such type of solution, that is ideal solution, what happens? Suppose if A2 plus B2 combines and forms a solution that is called AB type solution, two times after balancing the equation. What we are seeing here in ideal solution, इसमें हम क्या देखते हैं, जो A और A के बीच में इंटरेक्शन होती है और B के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो किसके बराबर होती है? A और B की इंटरेक्शन के बराबर. दैट मीन्स A और A के बीच में जितनी बॉन्ड एनर्जी होती है, B और B के बीच में जितनी बॉन्ड, वो किसके बराबर होती है? A B के बॉन्ड एनर्जी के बराबर. दैट मीन्स इसके अलावा अगर आप इसका 50 ml लोगे, इसका भी 50 ml लोगे, इनको मिक्स करके यहाँ पे क्या बन जाएगा? 100 ml. दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम भी क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट. We can say change in volume is 0. That means in ideal solution, delta V mixing, we have already discussed it, is equal to 0. Delta H mixing is also equal to 0. You know that the solution formation is a spontaneous process, and for that whenever any process is spontaneous, at that time delta G must be negative. तो यहाँ पे भी delta G negative है. अगर delta G पॉजिटिव होता फिर सोल्यूशन नहीं बनती, क्योंकि सोल्यूशन हमें बनानी है और बन भी रही है. तो इसके अलावा delta G नेगेटिव होने के लिए delta S क्या होना चाहिए? पॉजिटिव. क्योंकि जब भी एक आइडियल सोल्यूशन बनती है उसमें हम चाहे आइडियल सोल्यूशन बने चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन बने, ये दोनों केसेस वहाँ पे सेम होती है. खाली नॉन आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है? शाबाश, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो ग्रेटर और लेस देन 0. वहाँ पे ये होता है. कहाँ पे? शाबाश, नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में. और क्या होता है नॉन आइडियल सोल्यूशन में?
इसका अपोजिट होता है आइडियल सोल्यूशन का, वहाँ पे P नॉट इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, और वहाँ पे P नॉट इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए, सिमिलरली P नॉट इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी। ये चीज़ें हैं किसमें, नॉन आइडियल सोल्यूशन में। इसके बाद जब हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होता है वो फॉलो नहीं करता है किसको, शाबाश रेवल्ट्स लॉ को, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म पे या किसी भी टेम्परेचर कंडीशन पे वो उसको फॉलो नहीं करता है। दैट मीन्स जो P ऑब्जर्व्ड होता है वो P कैलकुलेटेड के बराबर नहीं होता है। मगर आइडियल के केस में क्या, प्रेशर ऑब्जर्व्ड ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रेशर कैलकुलेटेड ऑफ द सॉल्यूशन। एंड कैलकुलेट कैसे हम करते हैं, बाय रेवल्ट्स लॉ। इसी तरह नॉन आइडियल के केस में क्या होता है, वहाँ पे नॉट इक्वल टू होता है, वहाँ P ऑब्जर्व्ड नॉट इक्वल टू P कैलकुलेटेड होता है। वहाँ डेल्टा V मिक्सिंग क्या होता है, शाबाश नॉट इक्वल टू 0। वहाँ डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0, मगर डेल्टा G नेगेटिव होता है वहाँ पे भी, और डेल्टा S पॉजिटिव होता है वहाँ पे। और मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल सॉल्यूशन, उसके एग्जांपल मैंने पहले सेशन में डिस्कस की थी कि आइडियल सॉल्यूशन तब बनती है जब साइज डिफरेंस बहुत कम होती है और नेचर भी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम। नेचर ऑफ द कंबाइनिंग कंपोनेंट्स और कंपाउंड्स इज ऑलमोस्ट सेम एंड साइज डिफरेंस इज ऑलमोस्ट सेम। फॉर एग्जांपल मैंने आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल में मैंने आपको बताया था मिथेनॉल C2H5OH जब इथेनॉल के साथ कंबाइन होता है। इसी तरह मैंने वहाँ पे बताया था शाबाश बेंजीन और शाबाश टॉलिन की बात मैंने की थी। इसी तरह इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस C2H5Br, इथाइल ब्रोमाइड, ये ट्रू सोल्यूशन होती है। इसी तरह क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये सब क्या होती है, क्योंकि एक तो इनका नेचर ऑलमोस्ट सेम होता है आपस में और साइज डिफरेंस भी बहुत कम होती है। अब इसके बाद जो नॉन आइडियल, ये आइडियल सॉल्यूशन की एग्जांपल थी आइडियल सॉल्यूशन की। और जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसमें एग्जांपल आती है सपोज जब भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो केसेस होती हैं और मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप्स की होती है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डिविएशन, वो मैं समझाऊंगा। पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर और रेवल्ट्स लॉ। इसी तरह सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रेस्ट, वही है आइडियल बिहेवियर और रेवल्ट्स लॉ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की केस में आपको क्या देखना है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे वो दो किस्म की होंगी, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। पॉजिटिव वाले में एग्जांपल है सपोज अगर मैं वाटर में क्या डालूंगा, बेंजीन, या वाटर में क्या डालूंगा, शाबाश हेक्सेन, ये किस में आते हैं, शाबाश ये पॉजिटिव डिविएशन में आती है। और नेगेटिव डिविएशन में कब आती है, जब फॉर एग्जांपल जब कंसंट्रेटेड एसिड इसके साथ मिलेंगे, शाबाश वाटर के साथ मिलेगा। जब कंसंट्रेटेड एसिड किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ। दैट मीन्स जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी, H बॉन्डिंग जहाँ पे प्रोड्यूस होगी वहाँ पे नेगेटिव डिविएशन, जहाँ पे
एच बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, एच बॉन्डिंग ब्रेक होती है यहाँ पे, तो पॉजिटिव डिविएशन वहाँ पे शो होता है और वो नॉन आइडियल भी होती है। और यहाँ पे साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ साइज डिफरेंस बहुत कम होती है और डिफरेंट नेचर के होते हैं, वहाँ ऑलमोस्ट सेम नेचर के होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, शाबाश, नेगेटिव में मेक होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, यहाँ पे ब्रेक होती है, क्योंकि जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा बन जाएगी उतना मॉलिक्यूल्स नज़दीक आएंगे और वॉल्यूम भी उससे कम हो जाएगा। वो आपको आगे देखना है कि क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ये भी अब कितने किस्म के होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। मैंने बताया सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम रोल्टस लॉ और solution is showing negative deviation from ideal behavior and solution is showing positive deviation from, पहले हम बात करेंगे इस वाले की, solution showing negative deviation from Rolte's law। उसका मतलब क्या है कि जो भी डिविएशन होती है नेगेटिव, उसका मतलब क्या होता है कि रोल्टस लॉ से जब हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं तो नेगेटिव डिविएशन का मतलब यही है, जब हम रोल्टस लॉ से वेपर प्रेशर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू रोल्टस लॉ, तो वहाँ पे वेपर प्रेशर कम आ जाता है। दैट मीन्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि यहाँ पे इतना वेपर प्रेशर आना चाहिए, तो उस वेपर प्रेशर से कम आता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर से कम वैल्यू आता है। वही मतलब हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन इज शोइंग नेगेटिव डिविएशन। दैट मीन्स, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया रोल्टस लॉ से हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। जब वेपर प्रेशर ऐसी सॉल्यूशंस का हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बहुत कम आता है एज कंपेयर टू दैट विच वी आर एक्सपेक्टिंग। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे, उससे क्या वेपर प्रेशर क्या आ गया, कम, तो वही हो गया नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, सपोज ऑब्जर्व हमने किया था, सपोज किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर समझाने के लिए 5 बार, तो वहाँ पे 7 बार्स आ गए। यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया था 4, तो 3 ही बार आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे कम हो रहा है वेपर प्रेशर, यहाँ पे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर। दैट मीन्स जहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। वही तो मैंने बताया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, हेक्सेन आ गया, उसने इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या किया, ब्रेक। दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए, तो